Hello to all the very special members of Azad classes. Thanks. Actually, thank you very much for being the part of my small family on YouTube. And if you don't know me, so this is Vaibhav Tripathi on Azad classes. Welcomes all of you back on my own YouTube channel. And we are going to discuss today for class 9th chapter number 1, that is India, size and location. हम भारत के भौगोलिक राजनीतिक सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के बारे में एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी पद्धति से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर हो जाए। एंड इफ यू आर हियर फॉर द सेम आई एश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू गेट गुड। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स बिगिन। Discussing about our great country India, let us discuss some basic concepts on globe which is too necessary for your understanding. If you consider this is globe, this is 90-degree north pole, here it is 90-degree south pole. Now on globe two imaginary lines are drawn, मतलब दो काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं. One is called latitude and second one is called longitude line. कई बार कन्फ्यूजन्स हो जाता है बच्चों को कि सर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में नहीं आता है, इसको याद कैसे किया जाए या समझा कैसे जाए। मैं आपको समझाता हूँ एकदम शुद्ध हिंदी में, जिससे आपको हमेशा मेरे समझ से याद रहेगा। लेटना समझते हो, विश्राम करना, मतलब आजकल तो यार चल ही रहा है, कॉमन है, लॉकडाउन में लेट ही रहे हैं हम लोग। तो ये जो लेटते हैं हम, यही लेटने को या इसी को लेटी हुई लाइन कहते हैं, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड यानी ये जो लंबी लंबी आपकी रेखा जाएंगी, इसे हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। अगर मैं जरा सब बनाऊं तो आप इसको देखिएगा। दीज आर कंसिडर्स एन लैटिट्यूडनल लाइन ऑन द ग्लोब, ऑलराइट, क्योंकि ये लेटी हुई लाइन है, मैंने आपको बताया पहले ही। ऑलराइट, ये पूरी तरह से है ग्लोब पे। एंड These are considered as an longitudinal line. All right, इसे हम longitudinal lines कहते हैं. If you consider, these are considered as an longitudinal lines. तो ये जो लंबी लंबी रेखा है इसे longitudinal line कहेंगे. And these are considered as an latitudinal lines. ये दो काल्पनिक रेखाएं बनाई इसलिए गई हैं क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं दुनिया भर में, हम सारे के सारे कंट्रीज के लोकेशन को यहाँ से क्लियर कर सके। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट लैटिट्यूडनल लाइन्स टेल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन डे एंड नाइट्स। ठीक है, दिन और रात का जो डिफरेंस है या दिन और रात जो हो रहा है वो लैटिट्यूडनल लाइन्स की वजह से है। whereas longitudinal line has a liability or it has a responsibility to tell about the time difference. अब जैसे जितनी भी longitudinal lines हैं, तो हर एक longitudinal lines के बीच में आपके 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। There is a difference of 4 minutes in each longitudinal lines. All right. Now on this globe, 3 very famous latitudinal lines are there, which we have to understood it because it has some basic understanding. Without absence of these 3 latitudinal lines, we cannot take our concepts ahead. So the first latitudinal line is, this latitudinal line is considered as a 0-degree latitudinal line. And this 0-degree latitudinal line is equator. It divides whole earth or it divides whole globe on 2 equal parts, or it can be also considered that it divides whole earth into 2 hemispheres, that is northern hemisphere in the northern side and southern hemisphere in the southern side. ये आपको हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसे हिंदी में उत्तरी गोलार्ध, और एक सदर्न हेमिस्फीयर जिसे बेसिकली हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। सो दिस होल पार्ट इज कंसिडर्ड एज एन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज एन साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट line, that is latitudinal line, which is very important. This line is considered as an 23-degree 1/2 north, and this line is considered as a Tropic of Cancer. All right. Now third is this line we have to know, and this line is
also considered as in 23 degree 1/2 south and this is considered as in Tropic of Capricorn. तो ये 3 आपकी स्पेशल लैटिट्यूडनल लाइंस है जो हमें याद करना है. One we have already discussed about equator, the second one is Tropic of Cancer and the third one is Tropic of Capricorn. So as we have completed this basic discussion, now we are discussing about, so now we can discuss our great country that is India. अब इंडिया के अगर हम लोकेशन के बारे में ज़रा सा जाने तो भारत का लोकेशन यहाँ पे है. Here it is our location of India. बन रहा है ना इंडिया? हाँ, this is the map of India. Alright, ये लोकेशन है इंडिया की. Now you may have to understood that this 23 1/2 degree north Tropic of Cancer, why it was so special? Because Tropic of Cancer again divides India into almost 2 equal halves, that is tropical region and this one is considered as a subtropical region. मतलब यार अगर ये जो भारत तुम्हें दिख रहा था इतना सा, इसे हम मोबाइल फ़ोन की तरह जूम कर दिए और जूम करके ये हमने भारत प्रदर्शित किया. इस भारत में बेटा यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जा रही है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में फिर डिवाइड करता है. दिस वन इज डाउनवर्ड इज कंसिडर एज एन ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल का मतलब होता है हॉट एंड दिस इज कंसिडर एज एन सब ट्रॉपिकल रीजन. सब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब, सब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ठंडी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस ट्रॉपिकल के कंपैरिजन में यहाँ कंपैरेटिवली गर्मी कम रहती है. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया. 8 राज्य ऐसे हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं. इसे जरूर कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ऑलराइट, द फर्स्ट स्टेट वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इज गुजरात, सेकंड इज राजस्थान, थर्ड इज मध्य प्रदेश, फोर्थ इज छत्तीसगढ़, फिफ्थ इज झारखंड, सिक्स्थ इज वेस्ट बंगाल, सेवेंथ इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन त्रिपुरा एंड लास्ट वन इज मिजोरम. ओके, नाउ एज वी नो दैट इंडिया इज अ वेरी एंशियंट सिविलाइजेशन. भारत बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन का हिस्सा है. आपने क्लास बेसिक क्लासेस में या जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ये सारी चीज़ें, वैदिक कल्चर, ये सब ये बताता है कि भारत का एग्जिस्टेंस उस समय से ही है. ठीक है, और यही नहीं, पिछले 4 से 5 डिकेड्स में इंडिया हैड डेवलप्ड क्वाइट इम्प्रेसिवली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. तो भारत ने इन सारी चीज़ों पे बहुत ही तेज़ डेवलपमेंट भी किया है. अब हम अगर बात करें इंडिया की लोकेशन की कि इंडिया लोकेटेड कहाँ है, किन किन लैटिट्यूडनल्स और किन किन लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में लोकेटेड है, उसको आप ज़रा ध्यान से मेरे साथ देखिएगा. इफ़ वी डिस्कस, सो इंडिया लाइज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड हेयर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट to 97 डिग्री 25 मिनट इन द ईस्ट. इट मीन्स ये दोनों जगह ईस्ट है. दिस इज द मोस्ट ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश एंड दिस इज द मोस्ट वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया गुजरात. दिस में बी कंसिडर एज एन कश्मीर एंड दिस में बी कंसिडर एज एन कन्याकुमारी. मतलब मोस्ट हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया एज वेल एज नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स. अब यहाँ समझना है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एक तो हमें समझना है कि ये दोनों ही हमने नॉर्थ लिखा है और दूसरा आपको समझना है कि यहाँ पे इस डिग्री से इस डिग्री का मतलब क्या है. अब ज़रा सा ग्लोब पे नज़र डालिए, आपको इतनी सारी लेटी हुई लाइन यानी लैटिट्यूडनल लाइंस दिख रही हैं. ये एक 0 डिग्री इक्वेटर है और अगर ये 0 डिग्री इक्वेटर है तो इसके ऊपर ही यहाँ नॉर्थ में, चूँकि नॉर्थ यहाँ दिया हुआ है, नॉर्थ में 8 डिग्री लैटिट्यूड भी होगी. तो ये जो 8 डिग्री लैटिट्यूड है ये है और इसी तरह से ये जाते हुए 37 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड पास की होगी वो है. तो ये दोनों ही यहाँ पे 8 डिग्री से लेके और 37 डिग्री के बीच में भारत की लोकेशन है. ठीक है, अब इस दोनों ही जगह पे नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिखा गया है ये मैं आपको बताता हूँ.
एक्चुअली हमने इक्वेटर के बारे में डिस्कशन किया हुआ था अभी, दैट इक्वेटर डिवाइड्स होल अर्थ इनटू टू पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब भारत है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए यहाँ नॉर्थ की ही बात होगी। हर जगह आपको 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ के ही लोकेशन हम लिखते हैं। अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये जो आपके कंट्रीज़ हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इनकी लोकेशन आप पढ़ेंगे तो यहाँ साउथ आपको, यानी कि इतने डिग्री से इतने डिग्री जो भी उनकी लैटिट्यूडनल लोकेशन होगी वहाँ पे साउथ वर्ड होगा ऐड, बट हियर इन इंडिया वी आर गोइंग टू ऐड नॉर्थ। इसी तरह सेम जैसे ये 0 डिग्री है, इसी तरह बीच में ये जो आपकी एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन जा रही है, ये भी क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। So if this is also a 0 degree longitudinal line, so again it will divide the whole earth into two, that is east part and west part. तो अब भारत यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ईस्टर्न पार्ट में है, इसलिए here it is 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से इसकी लोकेशन है, और अरुणाचल प्रदेश तक आते आते ये 97 डिग्री ईस्ट की लोकेशन बताता है। तो दोनों ही जगह ईस्ट क्यों लिखते हैं और दोनों जगह नॉर्थ क्यों लिखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। समझाते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस यंग फोल्ड माउंटेन्स आर नन अनदर देन हिमालयाज। ये जो ग्रेट हिमालयस भारत में है, ठीक है, ये जो ग्रेट हिमालय है या हिमालय है, इसे ही हम यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। यंग इसलिए कहते हैं कि हिमालय अरावली रेंजेस की तरह बहुत पहले से नहीं एग्जिस्ट करता है। जैसा कि अरावली रेंजेस के बारे में मैंने बताया, तो ये बहुत पुरानी श्रृंखलाएं हैं, उसके कंपैरिजन में हिमालय यंग माउंटेन है। और फोल्ड इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज आर द माउंटेन्स विच आर फोल्डेड एंड दीज आर एसिमेट्रिकल नेचर। एक तो ये ए नेचर का यानी एसिमेट्रिकल नेचर का होता है, और ये फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, तो इसे यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इंडिया इज बाउंडेड एक्चुअली इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑल्सो, बिकॉज इफ यू सी द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, सो हियर इट इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वेयर देयर इज हिमालय। नाउ इन द नॉर्दर्न रीजन ऑल्सो देयर इज हिमालय, वी ऑल नो, कश्मीर। एंड इसके बाद अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो यहाँ भी नेपाल में और आप देखेंगे तो आसपास आपको हिमालय के क्षेत्र दिखते हैं। तो यानी कि तीनों जगह से भारत जो है ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, क्या बोल गया यार मैं, सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किससे बाउंडेड है, तो हिमालय से। इसी तरह अगर हम देखें नीचे यानी सदर्न पार्ट में, सो इफ़ यू सी, सो हेयर इट इज़ इंडियन ओशियन, and this particularly Indian Ocean has divided into two parts. Here it is Bay of Bengal, yes, and here it is Arabian Sea, yeah, ये अरेबियन सी है भाइयों, और ये है बे ऑफ बंगाल। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो मैं बता देता हूँ, दिस इज 23 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज वी हैव डिस्कस्ड। इसके थोड़ा सा नीचे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 22 या 21 डिग्री, जो 22 और 21 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूडनल लाइन पास होगी, यहाँ के बाद भारत थोड़ा सा हल्का सा सिमट रहा है या हल्का पतला हो रहा है। अगर आपको देखने को मिले भारत का मतलब कि ये जो भी आपके कोस्टल एरियाज हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज एन कोस्टल एरियाज, विल जस्ट डिस्कस इट लेटर। सो दीज कोस्टल एरियाज हल्का से ये पतला होना चालू हो जाता है, और यहाँ इसके पतले होने से हो कह रहा है कि इंडियन ओशियन का कुछ यहाँ अरेबियन सी में पार्ट और इंडियन ओशियन का कुछ पार्ट यहाँ बे ऑफ बंगाल तब भी एग्जिस्ट हो जाता है। अब एक चीज़ इसमें और हमें जाननी है, डैट इन द साउथ ईस्टर्न साइड देर आर वेरी फेमस आइलैंड इन इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अंडमान इधर नॉर्थ साइड में है, और निकोबार अगर आप देखोगे तो ये साउथ साइड में है, ठीक है, नीचे। और अगर आप यहीं साउथ वेस्टर्न पार्ट की बात करोगे तो साउथ वेस्ट पार्ट में भी आपको एक फेमस आइलैंड है, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड। सो व्हाट वी हैव स्टडीड, दैट इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज़ वेरी एंशियंट सिविलाइजेशन, ठीक है। बहुत सारे सबूत हैं जो आपको देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह ये भारत के ही सरजमी के आसपास की चीज़ें हैं। ये हिमालय यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन से घिरे हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में।
नीचे इंडियन ओशियन जो फिर से बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के रीजन्स में आके बढ़ जाता है। आइलैंड्स की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट रीजन में अंडमान नॉर्थ और निकोबार साउथ में आइलैंड एग्जिस्ट कर रहा है, और यही साउथ वेस्ट पार्ट में इंडिया के पास में एक और आइलैंड है, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड। Alright guys, that was the location of India which we have discussed. Now we are going to discuss about the size of India. अगर हम साइज के बारे में बात करें तो इंडिया हैज़ अ साइज ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप स्क्वायर किलोमीटर की बात करोगे तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में भारत का ये टोटल साइज या भारत का ये टोटल एरिया समाहित है। और अगर हम इसे स्क्वायर किलोमीटर में और ज़रा सा पढ़ें तो इसे हम 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं। मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कहो, चाहे इसे तुम 32,80,000 ऑलमोस्ट स्क्वायर किलोमीटर हम डिस्कस कर सकते हैं इंडिया के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, इस कंट्रीज के 2.4% का जो पार्ट है ये इंडिया है। क्लियर है? मतलब 2.4% भाग इंडिया है। और यहीं से अगर मैं कहूं तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब यार अपन 7वें नंबर पे हैं। ठीक है, अगर मैं पहले छठा तुम्हें मतलब क्या यार कुछ भी मैं बोल देता हूं बीच में, माफ कर देना। फर्स्ट 6 कंट्रीज के बारे में अगर मैं तुम्हें कहूं तो सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है रशिया, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ इज चीन चूंकि चाइना, ठीक है, फिफ्थ वन इज ब्राजील, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ तो अपन है ही। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर। अब ये लैंड बाउंड्री में क्या बोला नई चीज, इसको समझो। जैसे अगर हम ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन एक बना देते हैं 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, या नॉर्थ क्यों है बेटा, क्योंकि इंडिया एग्जिस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आई होप कि कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू दैट डू कॉमेंट, either you have any doubts or if you like my video, and please suggest me what to do more, because I'll continue your courses, but this is the first lecture for class 9th for so you know। अब ये जो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में फिर से बनाया मैंने, तो इसके नीचे यहाँ ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये 22 डिग्री जो हमने बताया डिस्कस किया था ना, 22 डिग्री नॉर्थ, तो ये जो आपको एरियाज दिख रहे हैं, these areas considered as coastal areas and these are considered as land boundary. So this land boundary, whole land boundary is considered as 15,002 kilometer, whereas if you consider as coastal areas, these are considered as 7,515.5 kilometer. और अगर आप टोटल भारत की लैंड बाउंड्री प्लस कोस्टल एरियाज के बारे में बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है ऑलमोस्ट 22,715.5 किलोमीटर। ये टोटल भारत किलोमीटर्स में इतने में फैला हुआ है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऑलराइट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्टर्न पार्ट इन कंपैरिजन टू नॉर्थ टू साउदर्न पार्ट इज कंसिडर्ड एज एन स्मॉलर। यानी ईस्ट टू वेस्टर्न पार्ट आपको भारत का स्मॉलर अपीयर होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ एंड साउदर्न पार्ट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इंडिया ही एक कह सकते हैं कि अपवाद कंट्री है ऐसी जिसके पास 30 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पड़ते हैं और 30 लैटिट्यूडनल लाइंस भी पड़ते हैं। अब यार तुम ये मत कहना कि सर भारत पे कैसे लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल लाइन आ गई। अरे यार मतलब भारत भी तो यहीं का हिस्सा है, और अगर ग्लोब पे ही 2 इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई है तो मतलब क्लियर है यार कि इंडिया पे भी ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होगी। तो अगर मैं इसे बनाऊँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं फ्रॉम 68 टू 97 डिग्री, एंड ये जितनी भी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं फ्रॉम 8 डिग्री टू 37 डिग्री, अगर आप काउंट करोगे तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइंस एज वेल एज 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस टोटल होती हैं। तो है ना हमारा भारत महान। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जो वो है टाइम ड्यूरेशन का। मतलब आपकी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया है कि देयर इज अ टाइम लैग or time difference of 2 hours from Gujarat to Arunachal Pradesh. That sun rises in Arunachal Pradesh earlier 2 hours in comparison to Gujarat.
यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे आपको सूर्योदय दिखाई दे रहा है तो गुजरात में वो 7 बजे होगा। रीजन क्या है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपके 30 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, इस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की ये वजह से टाइम का डिफरेंस होता था, पता है। तो अब जितनी आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो चूंकि आपको यहाँ पे जो है सूर्योदय पहले देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब इससे दिक्कत क्या होती कि अगर आप देखोगे तो अगर यार पहले ही 5 बजे ही अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग गया तो वहाँ तो ऑफिस वगैरह आपका बच्चों के लिए स्कूल वगैरह 8 बजे 7 बजे ही खुल जाएगा, और यहाँ गुजरात तक आते आते ये चीज़ें लेट होंगी। तो उत्तर प्रदेश में कुछ अलग टाइम, गुजरात में अलग टाइम, कश्मीर में अलग टाइम, राजस्थान में अलग टाइम, मध्य प्रदेश में अलग टाइम, ये जो कुचिपुली साउथ ये वाले जो होते हैं यहाँ अलग टाइम। तो बेसिकली बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन निकाला गया और इसे IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक एवरेज टाइम बताता है कि पूरे भारत में जो टाइम वहाँ हो रहा होगा उसी टाइम को हम एक स्टैंडर्ड टाइम मान के पूरे भारत का समय उसे एक मानक समय मानेंगे। तो अगर आप ये मानक समय माने तो दिस इज 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड लाइन आती है। कैसे आती है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बताओ कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितने लॉन्गिट्यूडनल लाइन थे सर जी? 30। ये बताओ कि स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें ये बताया था कि ईच लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच में टाइम कितना होता है, 4 मिनट का डिफरेंस। तो अगर ये दोनों तुम बता दिए तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि ये निकलेगा कैसे। 30 लॉन्गिट्यूडनल लाइन देख रहे हो, इंटू 4 अगर करोगे 4 मिनट तो ये 120 मिनट्स आ जाएगा। और 120 मिनट्स का मतलब कि इसे हम 2 आवर्स भी कह सकते हैं। मतलब है ना यार, 1 घंटे में 60 मिनट तो 2 घंटे में 120 मिनट, इतनी गणित तो तुम भी पढ़े होगे भाई। 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट क्यों रखा गया है ये भी समझ लो, ये तो क्लियर हो गया। तो अगर आप 68 डिग्री प्लस 97 डिग्री, ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल लाइन को अगर आप प्लस करके और 2 यानी एवरेज से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट द आंसर दैट इज 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। तो ये आपका ये जाके ये जो लाइन है, दिस लॉन्गिट्यूड लाइन इज कंसिडर एज एन 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। दिस लॉन्गिट्यूडनल लाइन पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश नियर इलाहाबाद। तो मतलब यार मैं तो बेसिकली यूपी का हूँ, तो अगर तुम भी यूपी के हो तो थोड़ी सी खुशखबरी है कि भारत का, पूरे भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारे उत्तर प्रदेश से पास होता है और ये 5 स्टेट्स से भी पासेस होता है। अब यार उत्तर प्रदेश तो उसमें होगा ही ना, मतलब ठीक है। सेकंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड याद कर लेना छत्तीसगढ़, फोर्थ याद कर लेना उड़ीसा और फिफ्थ याद कर लेना आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से IST स्टैंडर्ड टाइम पास होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो इफ यू लाइक द वीडियो please do it, subscribe and share to your friends so they may also get this important video, and in the next part we are going to finish the chapter. Till then, if you have any queries please do comment, I'll be glad to help you. तब तक के लिए जय श्री राम।